Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, we are making a series of videos about promotion prospects in banking because now we have more than 23,000 channel subscribers. Those are already working in bank or insurance or other sectors. So, there is a need to tell everyone how their career progression can happen. And there was a demand, sir, make video for promotion from clerical to highest rank. So in every video we are covering one step promotion. So we have already covered clerical to officer and officer scale 1 to scale 2. Now the next scale in banking is called scale 3. Scale 3 is normally designated as senior manager in number of banks. Scale 2 and Scale 3 are called middle management in the banking. So both are middle management people. Scale 1 is called junior management. So from Scale 2 to Scale 3, most banks provide two routes, two channels for promotion. One is called seniority channel, second is called selectivity channel or merit channel. In seniority channel, the basic consideration of promotion is the performance of the person in preceding few years. In some banks, 3-year performance is seen. In some banks, 2-year performance is seen, along with performance in interview. So the marks of interview and performance appraisal is added and a merit is created, and accordingly they are promoted. And in seniority, the number of people that will be called for the interview depends upon number of vacancies in that cadre. Now what happens is, the moment a person is promoted from scale 1 to scale 2, he is placed in a seniority list. So now he moves from seniority list of scale 1 to seniority list of scale 2. So whatever his position or serial number in seniority list, accordingly he or she is called for interview. In selectivity, that is the merit channel, normally the applications are invited from the eligible officers. Those are put in respective service. Say in some banks it is 2 years. In some banks it may be 3 years. Once we say 2 year, 3 year, that means 2 year, 3 year in scale 2. On a cut-off date. So if you are eligible, you will apply for a written examination. The written examination is basically on the banking knowledge or day-to-day knowledge or operational knowledge of the bank. And along with this written examination, the candidate has to undergo an interview. So the marks obtained in written, marks obtained in interview, and marks of performance appraisal, that is called CR or PAF in different banks, that is added, put together. And on the basis of this aggregate score, a merit list is prepared. And based on that merit list, promotion is given to such employees. So a senior manager in the bank gets the promotion, and on promotion, he is fitted in a higher rank. Normally, one additional increment is also added in the fitment formula, and his salary increases, or her salary increases. Along with this, the major difference in scale 3 comes the vested powers with the person. The person becomes more powerful, then he gets more perks and better positioning in the organization. Higher is the scale, the person can head the bigger branch. So that is the advantage, and that is a ladder to go up to the highest level, because you have to pass through all these ladders. So this is the way a person who has started as clerk or officer moves in the career, and he becomes scale 3. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हमने एक सीरीज ये शुरू की है जिसके अंदर हमने ये कोशिश की आपको बताने की कि बैंक में प्रमोशन किस तरह से मूव करती है. काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा थी, खासकर जो लोग आज बैंकिंग का हिस्सा नहीं है. इसके अलावा 23,000 से अधिक आज हमारे चैनल सब्सक्राइबर हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर में है.
वो भी चाहते हैं कि उन्हें पता लगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके सामने है, क्योंकि सब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो क्लर्क से अफसर की हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। देन स्केल 1 से स्केल 2 कैसे बनेंगे ये भी हम एक वीडियो कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्केल 2 पर्सन है, दैट इज मैनेजर है, वो स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर कैसे बनता है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स में 2 चैनल है। एक चैनल को हम बोलते हैं सीनियरिटी चैनल, दूसरे चैनल को हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी चैनल या मेरिट चैनल। तो क्या होता है कि जब आप स्केल 1 से स्केल 2 बनते हैं तो आप दोबारा एक नई सीनियरिटी लिस्ट में प्लेस किए जाते हैं। जो आपकी स्केल 1 की सीनियरिटी है वहां से आप अलग हो जाते हैं, और स्केल 2 में जिस दिन से आपको प्रमोशन मिली है आप दोबारा एक स्केल 2 की सीनियरिटी लिस्ट में आ जाते हैं। सो इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी चैनल के लिए लोगों को कॉल किए जाते हैं। जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके मल्टीपल में कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है और एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू प्लस जो आपकी परफॉर्मेंस है, कई बैंकों में लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है, कईयों में 2 साल की देखी जाती है। जो आपके PAF के नंबर हैं या CR के नंबर हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं। तो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस प्लस परफॉर्मेंस की नंबर, दोनों नंबर को जोड़ दिया जाता है, उससे एक मेरिट बनती है, और उस मेरिट के आधार पर जितनी वैकेंसीज हैं प्रमोशन की उतने लोग उसमें प्रमोट घोषित कर दिए जाते हैं। तो पहली प्रमोशन तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि आप जल्दी बनना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड रूट बैंक देते हैं जिसको मेरिट बेस्ड प्रमोशन बोलते हैं, सेलेक्टिविटी बोलते हैं। उसके अंदर कम सर्विस के साथ भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। काफ़ी बैंकों में 2 साल के बाद एलिजिबल है, कुछ बैंकों में 3 साल के बाद एलिजिबल है। तो जब ये आपकी उतनी सर्विस स्केल 2 में हो जाती है तो आप इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपसे एप्लीकेशंस कॉल की जाती है, आप अप्लाई करते हैं, फिर एक रिटर्न एग्ज़ाम में बैठते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम बेसिकली जो बैंक के प्रोसीजरल गाइडलाइंस हैं और जो जॉब प्रोफाइल्स हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के, उसके ऊपर बेस्ड वो एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू में जाना होता है। इंटरव्यू में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसमें नंबर मिलते हैं, और तीसरे नंबर आपके होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, CR के, जो आपने काम किया है बैंक में, उसके आधार पे जो आपको नंबर मिले। तो आपके रिटर्न के नंबर, इंटरव्यू के नंबर और PAF के नंबर तीनों जोड़ दिए जाते हैं, और उसको जोड़ के एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट के आधार पर जितनी वैकेंसीज हैं स्केल 3 की, उतने लोग वो प्रमोट हो जाते हैं स्केल 3 में। बाकी लोग फिर अगले साल दोबारा अपीयर हो सकते हैं। अब जब आप स्केल 2 से स्केल 3 बनते हैं, जो कि मिडिल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, मिडिल मैनेजमेंट में 2 स्केल हैं बैंकिंग में, स्केल 2 और 3। स्केल 1 को जूनियर मैनेजमेंट कहा जाता है बैंकिंग के अंदर। तो जो ये मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं स्केल 2 to 3, इसमें आपकी सैलरी दोबारा से फिटमेंट होती है। तो जो आपके सैलरी चल रही होती है उसको हायर रैंक पे फिट करके उसमें एडिशनल इंक्रीमेंट दे के आपकी बेसिक तैयार की जाती है। तो एक तो सैलरी इंक्रीज होता है प्रमोशन होने पे, दूसरा आपके पार्क्स बढ़ जाते हैं, उसके अलावा आपकी पावर्स बढ़ जाती है। तो आप बड़ी ब्रांच को हेड कर सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, जो आपकी लोनिंग पावर्स हैं, वो बढ़ जाती है, और ये एक रास्ता खुलता है आपका आगे बढ़ने के लिए, सीनियर लेवल पे जाने के लिए। तो इस तरीके से बैंक के अंदर टाइम पे प्रमोशन एवेन्यूज आते जाते हैं, और जो लोग उनको इनकैश करना चाहते हैं, उनमें बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग के अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल।